Welcome to the another lecture of the chapter number 8, the cell. So today we will learn about an overview of the cell, about the cell, types of the cell, size and shape of the cell. These things we will discuss today. So let's talk about overview of the cell. So first of all, you all know that the plant, in plant, the outer boundaries into the plants are cell wall, right? But when I talk about the animals, then in animals outer boundary is the cell membrane, or you can also call it as a plasma membrane. Now on the basis of the organelles, the cells are divided into two types. So there are two types of the cells. First one, which is known as a prokaryotic cell, and the another one, it is known as eukaryotic cell. Now what is the difference between these two? So in prokaryotic cell, well defined nucleus is not present. So nucleus is not well defined. While into the eukaryotic cell, well defined nucleus is present. Okay. In prokaryotic cell, around the nucleus, nuclear envelope is absent. That means a nuclear membrane. Nuclear membrane is absent around the nucleus. That's why these cells are known as a prokaryotic cell. Pro, that means a primitive, and karyotic, that means a cell. So prokaryotic, that means karyotic, that means a nucleus. So the prokaryotic, that means primitive nucleus, cell which have a primitive nucleus are known as a prokaryotic cell. Okay, while into the eukaryotic cell, a well defined nucleus is present. Okay, so here the nuclear membrane is present. Okay, now the next thing is, inside the nucleus chromosomes are present. Okay, and the chromosome, it contains the genetic material known as a DNA. So अगर मैं लिखूँ तो क्या आएगा कि न्यूक्लियस के अंदर, inside the nucleus chromosomes are present. Chromosomes are the condensed form of chromatin. Okay, and chromatin, it is made up of DNA plus protein. So inside this, the genetic material present is the DNA. So in this way, the genetic material present inside the cells. In prokaryotic cell, a single chromosome is present, only one. While in eukaryotic cell, more than one. More than one chromosomes are present. Now let's talk about the size. The size of the prokaryotic cell is 0.1 micrometer to the approximate 2 or 3 micrometer, while in eukaryotic cell the size of the cell is 10 micrometer to 100 micrometer. Look, the average size of the cell is up to the 0.1 to the 100 micrometer. Okay, more differences are also included here. Prokaryotic and eukaryotic cells, the double membrane bound organelles are absent here. Okay. double membrane bound
ऑर्गेनल्स। चलो कौन सी होती है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स? तो जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ऐसी जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, ये ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, सो दिस इज सम डिफरेंसेस अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और भी डिटेल में पढ़ेंगे, एज वेल एज सारी ऑर्गेनल्स और उसके फंक्शंस भी और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चलो अब बात करते हैं कि दोनों सेल में कॉमन क्या होता है। तो दोनों सेल में कॉमन होता है सेमी फ्लूइड, दैट इज द साइटोप्लाज्म। ओके, सो द साइटोप्लाज्म इज कॉमन इन बोथ, जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है एंड यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। ये साइटोप्लाज्म क्या है? तो ये एक ऐसा रीजन है, ये एक ऐसा सेमी फ्लूइड है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड है, और जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो सारी केमिकल एक्टिविटीज़ इसके अंदर होती है, राइट। सो ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस आर अकर्स इनटू द साइटोप्लाज्म। ओके, चलो अब सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करें, सो सेल ऑर्गेनल्स, तो यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती है। ओके, सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कौन सी होती है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स? सो दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। तो ये सारी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है जिसके अराउंड 2 मेम्ब्रेन्स का एनवेलप होता है, उसको डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं ऐसी ऑर्गेनल्स जिसके अराउंड एक भी मेम्ब्रेन नहीं है, दैट मीन्स नो मेम्ब्रेन। ऑर्गेनल्स which are not surrounded by any membrane, जिसके अराउंड कोई भी एनवेलप नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसी जो ऑर्गेनल्स होती है उसको हम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बोलते हैं। सो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में आएगा राइबोसोम्स। ओके, सो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर अब मैं बात करूं कि राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द राइबोसोम्स? तो राइबोसोम की लोकेशन क्या होगी? सो राइबोसोम्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्मा में फ्रीली मूव करते हैं। तो एक तो हो गया साइटोप्लाज्म, as well as it present inside the 2 organelles also. In the plant it is present into the chloroplast, while in animals it is present inside the mitochondria. As well as the ribosomes are also present on endoplasmic reticulum. Okay, so this is the location of ribosome. The another non-membrane bound organelle which is present inside the animal, it is centriole. Centrioles are absent in the plant cell. These centrioles are present in animal cell. Okay, so these organelles are also non-membrane bound organelles जिसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसी इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके, कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन सी है?
तो राइबोसोम एंड सेंट्रियोल ये दोनों नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, जिसमें से राइबोसोम प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि एनिमल सेल, प्लांट सेल सब में राइबोसोम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। बट अगर मैं सेंट्रियोल की बात करूँ तो सेंट्रियोल एक ऐसी ऑर्गेनल है जो ओनली एनिमल सेल में ही प्रेजेंट है। उसका फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ द सेंट्रियोल इज सेल डिवीजन। It helps into the cell division. So this is the function of the centriole. अब बात करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल की। ऐसी कौन सी ऑर्गेनल है जिसके अराउंड ओनली सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ओनली वन मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट अराउंड दी ऑर्गेनल, सो दैट इज द लाइसोसोम। लाइसोसोम के अराउंड ओनली वन मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है। एज वेल एज द अनदर इज वैक्यूल। आप लोगों को पता भी होगा कि जो वैक्यूल होती है उसके जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट बोला जाता है। तो ये दो ऑर्गेनल्स ऐसी है कि जिसके अराउंड ओनली वन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बाकी की ऑर्गेनल्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, टू ऑर्गेनल्स जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, एंड दिस टू आर दी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेल साइज एंड शेप। पहले हम साइज़ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद शेप के बारे में। लुक, जो जितने भी सेल्स होते हैं सारे सेल्स की जो साइज़ होती है वो लिमिटेड होती है। ओके, वो जो सेल्स के फंक्शन के ऊपर डिपेंड है, एज वेल एज न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के रेशियो के ऊपर डिपेंडेड है, जो सरफेस मैकेनिज्म है उसके ऊपर डिपेंडेड है, एज वेल एज जो सेल के सराउंडिंग नियर बाय जो नेबर सेल्स है वो भी उसकी साइज मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो अभी हम बात करेंगे सेल के साइज़ की और शेप की। नॉर्मली जो सेल की साइज़ होती है वो होती है 1 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक, या फिर हम माइक्रोब्स की बात करें तो 0.1 माइक्रोमीटर से भी साइज़ स्टार्ट होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। ओके, तो हम साइज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा सेल है जो सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है। सो दैट इज़ दी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। माइकोप्लाज्मा इज द नेम ऑफ द जीनस। ओके, जो आपने जो न्यूमोनिया कॉज करते हैं वो बैक्टीरिया के बारे में आपने सुना होगा, तो वो ये जीनस से बिलोंग करते हैं। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स है, जिसकी साइज़ होती है 0.1 से लेके 0.3 माइक्रोमीटर। अब सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं कि कौन सा सेल है जो सबसे लार्जेस्ट सेल है। लार्जेस्ट सेल दैट इज द ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच एग है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है, अप्रोक्स 1.5 kg जितना उसका वेट होता है, राइट। तो ये जो ऑस्ट्रिच एग है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया की सेल की साइज़ कितनी होती है? सो बैक्टीरिया के सेल की साइज़ वेरी करती है फ्रॉम दी 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर जितनी बैक्टीरियल सेल्स की साइज़ होती है। अब अगर मैं बात करूं ह्यूमंस की, तो अब देखते हैं कि ह्यूमंस की बॉडी में सेल्स की साइज़ क्या होती है। तो ह्यूमंस की बॉडी में जो स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा वाला, वो है उसके RBCs, रेड ब्लड सेल्स। ओके, तो रेड ब्लड सेल्स की साइज़ होती है 7 माइक्रोमीटर जितनी। लॉन्गेस्ट सेल की बात करूं तो वो है नर्व सेल, जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, ब्रांच्ड सेल है। तो अगर मैं नर्व सेल की बात करूं तो नर्व सेल की साइज़ उसकी जो लेंथ होती है वो अप्रोक्स 90 सेंटीमीटर जितनी होती है, अप्रोक्स। अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट सेल की
कि सबसे लार्ज वाला सेल कौन सा है ह्यूमन बॉडी में, सो दैट इज द ओवम, वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। ओके, सो दिस इज अबाउट द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बींग्स। अब बात करते हैं कि सेल के शेप्स कैसे होते हैं, शेप ऑफ द सेल। ओके, तो शेप होते हैं पॉलीगोनल, ओवल, स्फेरिकल, कॉलमनार, और इरेगुलर। ओके, तो जैसे पॉलीगोनल है जिसके बहुत सारे एंगल्स होते हैं, वैसा ओवल ले लो या स्पेरिकल ले लो, कॉलमनार ले लो, रॉड शेप ले लो, इरेगुलर शेप ले लो। तो इस तरीके के सेल्स के शेप डिफरेंट काइंड्स ऑफ दी होते हैं। अब ऐसा होगा कि शेप कैसे डिटरमाइन होते हैं, किस ऐसा सेल का शेप किस तरीके से होता है, तो वो होता है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। जिस तरीके का सेल का फंक्शन होता है उस तरीके का उसका शेप होता है। जैसे कि नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल पूरा कैसा है, ब्रांच्ड है, राइट। अगर मैं स्पर्म सेल की बात करूँ तो एक स्पर्म सेल के एंड पे आपको एक टेल देखने मिलती है, बिकॉज स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं और उनको एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी मतलब उनको यूटेरस तक, फीमेल के यूटेरस को पास ऑन हो के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है। तो उसके लिए मोटिलिटी के लिए उसके पास क्या होता है, टेल होती है। ओके, अगर मैं आरबीसी की बात करूँ तो डिस्क शेप्ड होते हैं। कैसा शेप होता है उसका, डिस्क शेप, बाइकॉन्केव शेप्ड होते हैं आरबीसी। ओवम की बात करूँ तो उसका है स्पेरिकल शेप। ओके, तो इस तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन की, कि तो क्या एक्सेप्शन है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो सेल्स है उसका जो फर्स्ट डिफरेंस क्या था सेल के टाइप का, तो वो था न्यूक्लियस। बट कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, जैसे कि आरबीसी में न्यूक्लियस, आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता नहीं है। ओके, सो दिस इज अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स।